Hey everyone, in today's video, we are going to learn about the stock market from scratch and understand it from the first principles. I used the word first principles deliberately, which is the process of breaking down a complex topic into its simplest forms and understanding it from the base. Basically, हम इस टॉपिक को इतना तोड़ेंगे that the topic itself will tell us there is nothing else to learn more. And the topics we are going to cover in today's video are these, and by the end of the video I can guarantee you that you will have the most deepest understanding about the stock market. Why I am saying this? You see people learning concepts from surface. They never try to dig deeper. They never try to learn that extra. They never try to learn it from scratch. But today we are going to learn the stock market from scratch. I mean zero se hero. So without wasting further time, let's get started. Now, in order to understand stock market, we need to understand market in the first place. अभी market होता क्या है? In simple language, market means बाजार. और ये बाजार क्या होता है? अगर हम इसको और break down करेंगे, that this bazaar is a place where transaction happens. Now, what is this transaction? Transaction कुछ नहीं है. It is exchange of value. Exchange of value means transaction. The value flowed from one entity to another entity. That's simply transaction. And this transaction happens between two parties, the buyer and the seller. Simply put, जब buyer और seller मिलते हैं to exchange something, it's known as transaction. और जहां पर transaction होती है उस जगह को हम बोलते हैं market. Market is a place where transaction occurs, and this transaction occurs between the seller and the buyer. And transaction means exchange of value. That's simply market. Or the most important thing about markets are that they are based on volunteer exchange. Volunteer exchange. अब इसका मतलब क्या हुआ? Volunteer means willingly. जब both party willing है in the transaction, उसी को बोलते हैं volunteer exchange. In other words, when both parties are happy, when the buyer is happy and when the seller is happy. अब मेरे को बताओ यार कि बायर कब हैप्पी होगा? सिंपल फंडा है ना, जब बायर कोई ऐसी चीज खरीदेगा जो उसको पसंद आएगी, दैट ही थिंक्स इज वैल्यूएबल. नाउ अब मेरे को बताओ सेलर कब हैप्पी होगा? When he makes profit from the transaction. That's simply the concept of volunteer exchange. जब सेलर प्रॉफिट बनाएगा ट्रांजैक्शन से और जब बायर खुश होगा उस परचेज से, उसी को हम बोलेंगे वॉलंटियर एक्सचेंज. यहाँ पर बायर ने फोर्स नहीं किया सेलर को बेचने को, यहाँ पर सेलर ने फोर्स नहीं किया बायर को खरीदने को. नाउ टू रैप अप द मार्केट, वी नो दैट मार्केट इज अ बाजार. जहां पर क्या होता है? जहां पर ट्रांजैक्शन होता है. और इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? मतलब व्हाट इज ट्रांजैक्शन? Simply the exchange of value between two parties, and these two parties are buyers and sellers. जब इन दो के दरमियान कुछ ऐसा exchange होगा उसी को हम बोलेंगे transaction, मगर वो ऐसा valuable होना चाहिए. That's simply transaction. और वो transaction कहाँ पर होती है? That transaction occurs in a place called market. और वो market is based on volunteer exchange. Volunteer exchange का मतलब कुछ नहीं, जब buyer खुश seller खुश, that's simply volunteer exchange. That's simply market. In our day-to-day life, we use market word every day, but we never understood it from the deep. But today we have grasped the foundation of the market. तो हमें समझ आ गया कि market actually होता क्या है. Now the market have different types, and we have two types of markets. Two types simply होते market के. One is general market, and the second one is financial market. Now ये क्या होता है? It's simple. जनरल मार्केट में हम ट्रेड करते हैं गुड्स और सर्विसेज. वी ट्रेड गुड्स और सर्विसेज इन जनरल मार्केट. वाइल इन फाइनेंशियल मार्केट्स वी ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. ये तो हमें समझ आया कि गुड्स और सर्विसेज होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू बाय सब्जी. आप कहाँ जाओगे? आप सब्जी मंडी जाओगे और सब्जी खरीदोगे. यहाँ पर क्या हो रहा है? गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. You will book a cab. यहाँ पर क्या हो रहा है? सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है. That's simply जनरल मार्केट. जनरल मार्केट एक ही फंडा है कि these are the markets that are available in our surroundings. जो भी आप अपने इर्द गिर्द मार्केट्स देख रहे हो ना, that are simply the example of जनरल मार्केट. सब्जी मंडी हो गया, मोबाइल फोन शॉप्स हो गया, क्लोथिंग शॉप्स हो गया और सर्विसेज हो गए, that are simply जनरल मार्केट्स. Now in financial markets it's something different. We trade financial securities. जनरल मार्केट फंडा ईजी है, सबको समझ आता है, ये छोड़ दो. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
समझना है, बिकॉज द होल वीडियो इज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल मार्केट्स. वाई? बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. अगर फाइनेंशियल मार्केट समझ आ गया तो स्टॉक मार्केट खुद ब खुद समझ आ जाएगा. नाउ व्हाट आर दीज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी कुछ नहीं है, सारा कुछ ईजी है. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर ट्रेडेबल. ये मेरी बात याद रखना, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर ट्रेडेबल. ये भी समझ आएगा ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है. लिसन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अब क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स अबाउट मनी. पैसों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट वी कॉल इट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. कॉन्ट्रैक्ट्स अबाउट मनी, दैट आर सिंपली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग मनी उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेबल हो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. इसका ही फंडा है. दैट्स व्हाई आई सेड दैट दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. समझ लो वापस से, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स अबाउट मनी. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पैसों के बारे में हो, दैट्स सिंपली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फॉर एग्जाम्पल लोन ले लो, आप बैंक पे गए लोन ले लिया, दैट्स सिंपली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द बैंक एंड द यू, और उसी को बोलेंगे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो लोन ट्रेडेबल है, दैट्स सिंपली व्हाट? फाइनेंशियल सिक्योरिटी. You see that in markets we trade something which is tradable. If something is not tradable, we cannot trade it in market. That's why we use the word financial securities. आधे लोग ये भी use करते हैं, but to be precise, we need to use this financial securities. Why? Because financial securities are the tradable versions of financial instruments. आपको समझ आ गया कि the financial securities are the financial instruments which are tradable, and financial instruments are the contracts about money. एंड अगर वही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेबल हो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिक्योरिटी. और फाइनेंशियल सिक्योरिटी ट्रेड करते हैं किसमें? फाइनेंशियल मार्केट्स में. नाउ वी गॉट टू नो व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स. दीज फाइनेंशियल मार्केट्स फर्दर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. नाउ लेट वी डिस्कस दीज टू टाइप्स. अब फाइनेंशियल मार्केट्स के भी दो टाइप्स हैं. एक तो हो गया मनी मार्केट, MM, और दूसरा हो गया कैपिटल मार्केट, और इसी को हम बोल देंगे स्टॉक मार्केट. मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट. ये समझने से पहले और ये समझने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल सिक्योरिटीज वापस से. अब देखो, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज तीन चीजें हमें दिखाती हैं. दे रिप्रेजेंट थ्री थिंग्स. पहला हो गया ओनरशिप, दूसरा हो गया रिलेशनशिप, और तीसरा हो गया राइट टू फ्यूचर इनकम. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के तीन टाइप्स है, या ये तीन चीजें दिखाते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज शो ओनरशिप, और दे शो रिलेशनशिप, और दे शो राइट टू फ्यूचर इनकम. वो वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हमें ओनरशिप दिखाते हैं, दैट आर सिंपली नोन एज इक्विटी सिक्योरिटीज. इक्विटी सिक्योरिटीज. और वो वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स ए पर्सन इन्वॉल्वड इन अ रिलेशनशिप, दैट आर नोन एज डेट सिक्योरिटीज. और वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स दैट शोज राइट टू फ्यूचर इनकम आर नोन एज डेरिवेटिव्स. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के तीन टाइप्स होते हैं, और वो वाले टाइप्स जो ओनरशिप दिखाएंगे, व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर नोन एज इक्विटी सिक्योरिटीज. और वो वाले टाइप्स जो हमें रिलेशन दिखाएंगे, दैट आर नोन एज डेट सिक्योरिटीज. और वो वाले टाइप्स दैट शोज राइट टू फ्यूचर इनकम आर नोन एज डेरिवेटिव्स. And on the basis of financial securities being traded, the financial market is classified into two types: money market, capital market, or stock market. I hope you got the point of financial securities. अब money market के बारे में हम बात करेंगे. What are money markets? देखो, in money markets we trade debt securities only. Debt securities का मतलब क्या है? Debt securities मीनिंग लोन. याद रख लो, लोन. लोन में दो पार्टी इन्वॉल्व होती है. एक होता है क्रेडिटर और दूसरा होता है बोरोवर. क्रेडिटर बोरोवर को पैसा देता है, और बोरोवर क्रेडिटर को फिर वापस से पैसे देता है कुछ समय के बाद विद इंटरेस्ट. Debt securities are the financial securities that represent the relationship between the creditor and the borrower. यही होता है debt securities. और ये debt securities in money market और short term. हम short term debt securities trade करते हैं in money market. ये बात बहुत important है. Short term means usually इनका लाइफ स्पैन होता है that is less than a year. In money market, we trade a specific type of financial security that are known as debt securities. और वो debt securities होते हैं short term, which means उनका term क्या होता है? Less than a year. वो एक ही साल के लिए होते हैं.
अब मेरे को बताओ, स्टॉक मार्केट व्हाट वी ट्रेड इक्विटी सिक्योरिटीज, बट यहाँ पर एक दूसरा फंडा है कि दैट वी ऑल्सो ट्रेड डेट सिक्योरिटीज। यहाँ पर हम दोनों को ट्रेड करते हैं। और एक चीज हम ट्रेड करते हैं यहाँ पर, दैट आर डेरिवेटिव्स। हम कैपिटल मार्केट में तीनों ट्रेड करते हैं, दैट आर सिंपली इक्विटी सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स। बट दीज इक्विटी सिक्योरिटीज एंड डेट सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म, यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ट्रेड करते हैं, एक्सेप्ट डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स यूजुअली शॉर्ट टर्म के होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 1 मंथ to 3 month और 4 month, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेरिवेटिव बीइंग ट्रेडेड। इसको हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स फोकस ऑन दीज टू, इक्विटी सिक्योरिटीज एंड डेट सिक्योरिटीज। इक्विटी सिक्योरिटीज क्या होते हैं? वो वाले सिक्योरिटी जो हमें क्या दिखाए, ओनरशिप। और डेट सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रेडिटर एंड द बोरोवर। और ये इक्विटी सिक्योरिटीज और डेट सिक्योरिटीज होते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स ग्रेटर देन 1 year, इट लास्ट्स फॉर 10 years, 50 years, 100 years एंड सो ऑन। ये मतलब होता है कैपिटल मार्केट का और स्टॉक मार्केट का। अब तो ये सवाल बनता है ना कि दैट व्हाई वी नीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू टेक एन एग्जाम्पल, we need to take a hypothetical scenario to understand why we needed two different types of markets in financial markets. Now let's take an example of money market, why we needed money market. Suppose company 1 has surplus amount of money this year. उनके पास एक्स्ट्रा मनी बच गया इस साल, सरप्लस मनी उनके पास है। और कंपनी 2 is struggling financially. Company 1 has surplus money and the company 2 struggles financially and they need money for survival. अब तो कंपनी 2 पैसे ढूंढ रहा है कि कहाँ से पैसे बोरो कर लूँ शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 year के लिए। यूजुअली तो लोन 1 year का नहीं होता है, तो अब वो कहाँ जाए? और कंपनी 1 भी ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर ले, यूजुअली फॉर 1 year, ये भी बिकॉज लोन इज 1 year के नहीं होते। वेयर दे विल गो? There was no market to fulfill this kind of gap, where a company is having surplus and where the company is struggling financially. Now to fulfill this gap, money markets were invented. Money markets ये gap को fulfill करते हैं. They provide a way to invest a surplus amount of money for a short term and they provide a way for the companies who are struggling to borrow money for the short term. ये concept है money market का. ये gap को fill करने के लिए money markets आ गए. Now let's understand why we needed capital markets then. Same example लेते हैं कि company 1 needs to expand his business. वो अपना expand business कर रहे हैं. And expanding a business is a long term project. ये 1 साल में तो नहीं होगा. Where they will borrow money. Loans तो लगभग 5 साल के होते हैं. But they need money for long term. They will go simply to capital market or stock market. क्यों जाएंगे? To raise money for long term projects. To raise money for long term projects. ये तो समझ आ गया यार. To raise money for long term projects वो कहाँ जाएंगे? कैपिटल मार्केट. अगर शॉर्ट टर्म है कुछ तो कहाँ जाएंगे? मनी मार्केट. I hope you got the point why we need different types of financial markets, that are money markets and capital markets or stock markets. Now remember this thing. Money market simply means debt plus short term plus liquidity. ये 3 बातें याद कर लो. याद मतलब समझ लो कि in money markets we only trade debt securities and they are usually short term and they have high liquidity. Now what's liquidity? Liquidity is the ability of something to get converted into cash. कैश में कि कितना जल्दी कन्वर्ट होगा, that's simply liquidity. अगर कोई चीज़ जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा, it has high liquidity. अगर कोई चीज़ बहुत टाइम ले रहा है to convert into cash, it has low liquidity. Let's take an example of gold. Gold can be converted into cash within 1 hour. तो gold liquidity क्या रहेगी? High. Meanwhile, property को buyer ढूंढने के लिए it requires time like months to years. So property has low liquidity. यहाँ पर हम क्या ट्रेड कर रहे हैं? Short term securities. And we know short term securities have high liquidity. Now let's take the same expression in the case of capital market. In capital market we trade both equity plus debt plus derivatives. Not both, all of them. And they are long term. बस ये बातें याद कर लो, याद नहीं समझ लो. Equity यानी ownership. Debt यानी relationship. Derivatives यानी right to future income. And these are long term. They can be liquid
as well as illiquid. It depends, and we will discuss it in upcoming videos which securities are liquid and which are illiquid. I hope you got the point why we need different markets now. चलो और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ. अब इस कैपिटल मार्केट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यूजुअली 4 टाइप्स, एंड यू नो दीज टाइप्स. सिर्फ आपको नाम पता नहीं होगा, बट यू नो व्हाट दे मीन. लेट्स चेक. These financial markets are classified into 2 types, money market and capital market. And this capital market is further classified into 4 types. The first market is equity market. Equity market. The second market is debt market, bond market we call it. Bond yani debt. There is a difference, but we'll cover it in upcoming videos. What's the difference between debt and the bond? अब तक के लिए तो याद रख लो कि bond market and derivative market और forex market. इन कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है कि वेयर वी ओनली ट्रेड इक्विटी सिक्योरिटीज. इन कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है कि वेयर वी ओनली ट्रेड डेट सिक्योरिटीज, एंड दैट मार्केट नोन एज बॉन्ड मार्केट. और इस मार्केट में एक ऐसा टाइप का मार्केट है जहां पर वी ट्रेड ओनली डेरिवेटिव्स. और एक ऐसा मार्केट होता है, इट्स कंफ्यूजिंग क्योंकि हमने इसको अभी पढ़ा नहीं है. यहाँ पर वी ट्रेड करेंसीज सिंपली INR टू USD एंड USD टू INR. फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम INR को करेंगे एक्सचेंज इनटू USD, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर. अगर हमने INR को किया कन्वर्ट किसमें, USD में, और USD का दाम बढ़ गया और INR का गिर रहा है, दैट्स यूजुअली हैपनिंग राइट नाउ, वी मेड प्रॉफिट. ऐसे हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं. इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट. इक्विटी मार्केट हम क्या करते हैं ट्रेड, इक्विटी सिक्योरिटीज. इक्विटी मतलब ओनरशिप सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज जो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी, ओनरशिप. बॉन्ड मार्केट में हम क्या करेंगे, डेट सिक्योरिटीज ट्रेड करेंगे. डेरिवेटिव मार्केट में क्या ट्रेड करेंगे, वो वाले फाइनेंशियल सिक्योरिटीज दैट रिप्रेजेंट राइट टू फ्यूचर इनकम. इसमें आता है ऑप्शंस और फ्यूचर्स. अगेन वी विल डिस्कस दीज कॉम्प्लेक्स वर्ड्स इन अपकमिंग वीडियोस. और फॉरेक्स में हम ट्रेड क्या करते हैं, करेंसीज. फॉर एग्जाम्पल INR टू USD हो गया, अगर USD का दाम बढ़ गया, INR का गिर गया, यू हैव मेड द प्रॉफिट. ऐसे ही होता है. नाउ वी हैव कवर्ड अ होल लॉट ऑफ थिंग टुडे, कि हमने समझा कि मार्केट क्या होता है. और मार्केट के 2 टाइप्स होते हैं, जनरल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट. और जनरल मार्केट सबको समझ आता है. नाउ फाइनेंशियल मार्केट फर्दर 2 टाइप्स है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट. मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट. वी गॉट टू नो दैट इन मनी मार्केट ओनली डेट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड. हियर ऑल ऑफ देम आर ट्रेडेड, यूजुअली शॉर्ट टर्म, यूजुअली लॉन्ग टर्म. एग्जाम्पल के लिए समझा हमने कि सरप्लस कैश को इन्वेस्ट करें कहीं पर, वी विल गो टू मनी मार्केट. अगर हमें शॉर्ट टर्म कुछ बोरो करना है, वी विल गो टू मनी मार्केट. बट इफ यू वांट टू रेज मनी फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, वी विल गो टू कैपिटल मार्केट, वी विल गो टू स्टॉक मार्केट. और स्टॉक मार्केट के ही फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट और फॉरेक्स मार्केट. इक्विटी में इक्विटीज ट्रेड करते हैं, बॉन्ड्स में डेट्स ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव्स में हम करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड, एंड इन फॉरेक्स वी ट्रेड करेंसीज. That's a simple roadmap for you to understand the basic of stock market. And in stock market, we usually trade in equity market and in derivative market. कुछ लोग आज फॉरेक्स में भी जा रहे हैं, but this channel is focused on these 2 things, equity market and derivative market. If you want to trade in stock market, specifically in equity market and derivative market, and this channel is for you. And we will break down these markets in detail in such a way that a YouTube video has never ever covered like this one. ऐसा कोई YouTube पे कोई वीडियो नहीं मिलेगा जो आपको ऐसे पढ़ाएगा. आई गारंटी यू. सर्च कर लो भाई, सर्च कर लो. और मेरे पे यकीन नहीं हो रहा है, बिकॉज आई हैव ट्राइड इट बाय माई सेल्फ. नाउ लेट्स सी हाउ इक्विटी मार्केट्स एक्चुअली वर्क. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. कंपनी 1 wants to expand the business. उनका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है एंड दे वांट टू एक्सपैंड इट, एंड फॉर एक्सपेंशन दे नीड कैपिटल, यानी पैसा उनको चाहिए एक्सपेंशन के लिए. एंड दिस अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट स्मॉल, इट्स ह्यूज, लाइक 4,000 CR, 5,000 CR, 8,000 CR एंड सो ऑन. अब इतना बड़ा अमाउंट वो कैसे रेज करेंगे? दिस वॉज द क्वेश्चन. दे विल सिंपली गो टू कैपिटल मार्केट. In capital market, what they will do, they will dilute their company. Now remember this thing, a company is like a pie, and this pie represents the ownership of the company. Suppose the company's 50% ownership is owned by its founders, and the remaining 50% is owned by investors. Investors are the people that invest their own money in the company in exchange for equity. Now यहाँ पर एक word आ गया, ambiguous word, that's equity. Now what is equity? Equity is the synonym for ownership.
कि equity means कितना ownership है इनके पास. If founders have 50% of the ownership, in other words we can call it founders have 50% of equity. Simply ownership कितनी है कंपनी में, that's equity. Now what they decided कि वो एक specific portion dilute करेगी of the company in stock market. Suppose वो portion 30% है. This 30% would be available for public. And anyone can buy these 30% of the company. मगर ये जो 30% है ना, it will cost for example के लिए 100 करोड़. And a general person doesn't have the purchasing power to purchase such amount of equity. इसको affordable बनाने के लिए what they will do, they will convert these 30% into small pieces. Small pieces. And they will call these pieces shares. Shares are nothing. They are small pieces of the equity that a company has diluted to the public. That are simply shares. For example, उन्होंने इस 30% का 20 लाख shares बना लिया. Now we have to make 20 lakh shares available to public. How we can do this? There is a process, standardized process. And that process is known as IPO. सबने सुना होगा. Initial Public Offering. Initial का मतलब क्या है? कंपनी पहली बार लिस्ट हो रही है स्टॉक मार्केट पर. पब्लिक क्या, किसको दे रहे हैं भाई? पब्लिक को. ऑफर क्या कर रहे हैं? ये 20 लाख शेयर्स. ऐसे कंपनी होती है लिस्ट इन स्टॉक मार्केट. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन वेयर दे विल ऑफर दिस, बिकॉज फॉर द ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शन होने वाली है बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड द कंपनी, वहां पर क्या होना चाहिए? मार्केट. वो मार्केट अभी तो है ही नहीं. अब मार्केट कहां पर है? वो where they will list these shares. And these markets in equity market or in stock market or in capital market are known as exchanges. The company will go to exchange in order to make the shares available to general public. And we have two famous exchanges. नाम सुना होगा, National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange. कंपनी जाएगी NSE के पास, बोलेगी भाई मेरे को अपनी कंपनी लिस्ट करानी है आपके बाजार में. और कंपनी जाएगी BSE पर, बोलेगी हाँ मेरी कंपनी है, मेरे को BSE पर भी लिस्ट होना है. क्योंकि यूजुअली कंपनीज दोनों जगह लिस्ट होती है फॉर मोर रीच, बिकॉज यहाँ पर आधे कस्टमर्स हो गए, यहाँ पर आधे कस्टमर्स हो गए. इफ यू वांट टू रीच अ ब्रॉडर ऑडियंस यू हैव टू लिस्ट योरसेल्फ ऑन बोथ ऑफ दीज मार्केट्स. इसलिए कंपनीज NSE पर भी होती है और BSE पर भी होती है लिस्टेड. NSE and BSE are nothing. They are just exchanges of Indian stock market where companies go to list their shares for general public. चलो ऊपर वाली एग्जांपल वापस से लेते हैं. शेयर्स तो हो गए अवेलेबल अब पब्लिक के पास, एंड द कॉस्ट ऑफ पर शेयर इज 100 रुपीज. फॉर एग्जांपल पर्सन X thinks that the company has potential to grow. Company is fundamentally strong. वो इसके शेयर्स खरीद लेता है. कितने खरीदेगा? फॉर एग्जांपल 10 खरीदेगा. तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 1000. इसने 1000 में खरीदे 10 शेयर्स इसके. नाउ आफ्टर सम टाइम कंपनी ने बहुत एक्सपेंड किया एंड द कंपनी हैड ग्रोन देयर बिजनेस. मतलब उनका बिजनेस इतना एक्सपेंड हो गया कि नाउ अब शेयर की कीमत है 1000. उसके पास कितनी क्वांटिटी थी? 10. तो टोटल अब उसका वर्थ कितना रह गया उन शेयर्स का? 10 इंटू 1000 कितना हो गया? 10,000. तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया यार? 9,000 उसने ऐसे ही बना लिया विदाउट वर्किंग. ही जस्ट एनालाइज्ड द कंपनी कि कंपनी में क्या पोटेंशियल है ग्रो होने का, एंड कंपनी ग्रू. जब कंपनी ने ग्रो कर लिया तो स्टॉक प्राइस क्या ऑटोमेटिकली बढ़ गया. ये स्टॉक प्राइस क्यों कंपनी के ग्रोथ के साथ प्रोपोर्शनली ग्रो करते हैं, वी विल डिस्कस इट इन अपकमिंग वीडियोस. नाउ उसने बैठे बैठे 9,000 रुपये कमा लिए. इट इज नॉट अबाउट 9,000 रुपीज. सपोज ही हैड बॉट 10,000 शेयर्स. अब देखो उसने कितना पैसा बनाया होगा वाइल सिटिंग. दैट्स हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स. और जो उसने वो पैसा दिया ना, इट सिंपली गोज इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी, और वो कंपनी उस पैसों को क्या करती है? दे यूज इट इन एक्सपेंडिंग द बिजनेस, एंड इन एक्सचेंज फॉर दैट मनी द इन्वेस्टर गेट्स व्हाट? शेयर्स. और वो शेयर्स क्या होते हैं? ओनरशिप. जितनी कंपनी ग्रो करेगी उतनी ओनरशिप वैल्यूएबल होगी, एंड द इन्वेस्टर वुड हैव राइट टू सेल दैट ओनरशिप एट हायर प्राइस देन द कॉस्ट प्राइस. ऐसे ही प्रॉफिट बनता है शेयर बाजार पर. Now there is a strong confusion, not strong confusion, मतलब एक confusion रहता है हर किसी में कि what's the difference between stock and share, stock versus shares. Confusion कुछ नहीं है. The difference is simple, but we use it interchangeably in our day-to-day lives. But अब से नहीं करना है. देखो भाई, हमने देखा कि कंपनी थी, उन्होंने कितना डाइल्यूट कर लिया? उन्होंने 30% डाइल्यूट कर लिया.
इस 30% को उन्होंने कन्वर्ट किया 20 लाख शेयर्स में. We can call these 20 lakh shares as stock. Stock is a collective word used for shares. Stock is nothing, collection of shares. And share is nothing. Share is just the small piece of the ownership. For example, आपने 10 shares खरीद लिए MRF के. आप इनको दो तरीके से बोल सकते हो कि I own stock of MRF. Stock यानी कि collective word for shares. Or you can say that I own 10 shares of MRF. Stock is simply the collection of shares and share is the individual piece of that stock. I hope you got the point with the difference between the stock and the share. I think right now we should conclude the video because today we built the foundation, what markets are, the types of financial markets and how equity market works at the basic level. Chalo, let's see whether we have covered all the concepts that we intended to complete in this video. We understood what is a market, we understood types of markets, securities भी समझ लिया, instrument भी समझ लिया, difference भी समझ लिया, what's the difference between the stock and the share भी समझ लिया, and exchange भी पढ़ लिया. So basically we have covered all the topics today. But I will give you homework. But this homework is very important. What is your job? Your job is to explain these all concepts that you grasp today to someone else who doesn't understand it. Why I am saying you this? Because teaching reinforces learning. If you cannot teach what you have understood, you don't know it fully. In the next video, we will go one step deeper. How you actually enter the market. We will understand about demat accounts, trading accounts, the role of brokers, and how platforms connect you to the exchanges like NSE and BSE. Right now, you understand the system. But next, we will learn how to actually use that system. ये मेरी बात याद रख लो. जो नॉलेज होती है ना, वी कॉल इट पावर, बट नॉलेज इज नॉट पावर. नॉलेज इज पोटेंशियल पावर. नॉलेज तब भी पावर बनती है व्हेन वी यूज इट. इफ यू डोंट यूज नॉलेज, इट्स यूजलेस, इट्स जस्ट पोटेंशियल पावर. बट व्हेन वी यूज इट, इट बिकम्स एक्चुअल पावर, जो हमारे काम आती है. So today we grasped the potential knowledge, basically. We learned about the potential knowledge. We stored the potential knowledge into our minds. And upcoming videos will focus on converting this potential power into kinetic energy. To be more precise, into actual power. And this actual power will help us to make egregious amounts of money in stock market. I hope you got the point that this video was all about foundation. And the upcoming videos are going to be more practical, more informative, with more real life use cases. That was all by my side. I hope you understood today's lecture and we'll meet you next lecture. Till then, goodbye.